Welcome back. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. And we are talking about the very interesting topic of class 8 science, lesson number 2, that is microorganism, friends and food. In that we have discussed many things about the microorganism. Now the second last topic which we are going to talk about these microorganisms is food poisoning, and in related with that, how to preserve the food. First of all, we will talk about food poisoning. What is mean by food poisoning? Food poisoning मतलब क्या सच में फूड में पॉइजन आ जाता है? No, it doesn't mean like that. When the natural useful constituent ingredients or the nutrients have been converted into the harmful chemical substance by the activity or the action of microorganism, that is called as food poisoning. In short, when we eat such a food, that time we become very susceptible to disease, or we are suffering from many disorders mostly related to the digestive system. Okay, because food is mainly related with the digestive system. Now, how does this food poisoning takes place? The food poisoning takes place mainly due to fungi, bacteria, okay, then protozoa, और ये जो सब चीजें होती है ये होती है थ्रू कैरियर्स. ओके, थ्रू कैरियर्स. सो व्हेन दीज कैरियर्स की जगह पे आई विल राइट थ्रू हाउस फ्लाइज. House fly. See what happened. When the food is, so many cases are there, when one by one we will see. First case, when the food is kept uncovered, that time flies, yesterday I told you, how does the flies move from the filthy place to the healthy place. So when flies came from such a dirty, unclean place and sitting on our food stuff, that time these microorganisms are carried from that place to this place, and they are starting to consume that nutrient through that food and multiply in number. Multiply in number matlab they reproduce. When they reproduce or when they digest that food for their own body, that time they release the chemical substances, right, as the part of their metabolic activity. So these chemical substances which are released by those microorganisms makes that food uneatable for us or make that food spoiled. वो food पूरा spoil कर देते हैं. ठीक है? That food becomes completely unhealthy for us, and if in case by mistake or however, if you consume that type of food, that time we fall ill. ठीक है? This is one thing. Second case, if the food is kept, means the food is not fresh. आपने आज सुबह सब्जी बनाई और आप उसको कल दोपहर कल रात को खा रहे हो, so that time as the time pass on, the food become unhealthy, unfit to consume. क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है नेचुरली. And when the process of decomposition in itself begins, that time also they release the harmful chemical substances which are not healthy for us. Clear? Third case, when food is good,
right? Food is okay, it is not spoiled, it is freshly prepared, all the precautions we have taken. रही बात पानी की, when we are consuming or when we are drinking the water, जो हम पानी पी रहे हैं वो पोर्टेबल नहीं है. पोर्टेबल मतलब पीने के लायक नहीं है. दिखता तो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट दिखता है बिल्कुल, बट आई टोल्ड यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. मतलब हमारे नेकेड आई से वो नहीं दिखते हैं. सो सुपरफिशियल ओवरव्यू में ये जो ग्लास है पानी का, सपोज ये तो मुझे क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, सो इट्स प्योर फॉर मी. इट इज नॉट लाइक दैट. समटाइम the protozoan like amoeba, paramecium, entamoeba, they are present in that water. Maybe because of pollution, maybe because of contamination, वो present होते हैं. और उस पानी को अगर हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी फूड आइटम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इन आवर बॉडी एंड दैट स्पॉइल्ड द फूड. Understand? And whole these scenario is called as food poisoning. अभी फूड पॉइजनिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट इट इज रिलेटेड विथ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं. This type of food, if we are eating, consuming spoiled food, knowingly or unknowingly, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि ये फूड रॉटन है कि कैसा है, हम स्मेल भी करते तो हमें कुछ समझ भी नहीं आता है. जनरली जब हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो गर्मा गर्म मतलब डोंट टेक पर्सनली, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू होटल, वो इतनी अच्छी खुशबू रहती है, सब इतना रहता है, बट आर यू श्योर इट इज फ्रेशली प्रिपेयर फॉर यू? घर में जो डिश बनाने के लिए मम्मी को 2 घंटे लगते हैं या फिर 1 घंटा लगता है समझो, वो डिश आपको 10 मिनट में कैसे रेडी होके मिलती है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? भले कितनी भी प्रिजर्वेटिव टेक्नोलॉजीज हो, फिर भी इस बारे में आप सोचो. अगर ऐसा खाना हम खाते हैं तो स्टमक एक सीवियर स्टमक एक होता है हमें. सेकेंड, वी आर फीलिंग अनईजी, हमें नोजिया होती है, समटाइम वी वोमिट आउट टू, कभी कभी वोमिटिंग भी होती है, नोजिया होती है, अनकंफर्टेबलनेस जिसे कहते हैं हम. समटाइम वी सफर फ्रॉम द मोशंस, लूज मोशन जिसे डिसेंट्री कहते हैं. समटाइम वी सफर फ्रॉम द हेड एक ऑल्सो, क्योंकि अच्छे से वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है और वो जो केमिकल्स है वो फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. एंड वी सफर फ्रॉम ऑल दीज डिसऑर्डर्स. सो to avoid all these things, as I told you in the previous session, that always keep the food covered, always eat freshly prepared food. Avoid to eat the food at the roadside stalls और ठेला जहाँ पे जो मिलते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं लेकिन उतने ही हार्मफुल होते हैं. So avoid all these things so that you will be safe from the case of food poisoning. ठीक है, देखो बाहर का ही नहीं, घर का भी जो खाना बचता है या फिर घर के भी जो अलग अलग डिशेस होते हैं, समटाइम्स सम फूड आइटम्स वी यूज टू मेक एंड कीप फॉर द ईयर, जैसे पिकल होता है या फिर कुछ ऐसे जेली, स्क्वैशेस, जाम्स वगैरह होते हैं, फ्रूट पल्प होते हैं, आंवला के वगैरह, आंवला कैंडी जैसे, वो हम पूरे साल के लिए बना के रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पापड़ या फिर चिप्स वगैरह वो पूरे साल के लिए बना के रखते हैं. या फिर जो ग्रेन्स हम घर में लाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, whichever grains you are consuming, या फिर जो लेग्यूमिनस दाल वगैरह हो, हम पूरे साल के लिए घर में स्टोर करके रखते हैं. तो उनको भी तो ये चीज से बचाना है. कैसे? फॉर दैट वी हैव दीज डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज. ओके, विच आर दीज? ड्राइंग, heating, cooling, deep freezing, use of common salt, use of sugar, use of oil, कौन सा भी ऑयल ले सकते हैं हम, use of chemicals, then use of pasteurization method and use of airtight packets. First we'll talk about the drying. आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में पूरे साल के लिए अनाज भर के रखते हैं तो हम उसको पूरा सुखाते हैं, ड्राई करके रखते हैं. सन ड्राइंग मोस्टली प्रेफर, सन ड्राइंग. इलेक्ट्रिक हीटिंग या फिर इलेक्ट्रिक ड्राइंग भी होती है, उसको हम हीटिंग में देखेंगे. बट
ड्राइंग ऑफ द मटेरियल इज वेरी बेनिफिशियल। जब हम ड्राई करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने से क्या होता है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। सो जो भी हमारा फूड आइटम है वो सेफ रहता है, प्रिजर्व रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसके लिए आप एयर ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप सन ड्राइंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हीटिंग। टू हीट समथिंग एंड फॉर एग्जाम्पल मिल्क का एग्जाम्पल ले लो। मिल्क, when we used to bring the milk from the मार्केट से या डेयरी से हम मिल्क लेके आते हैं, या फिर जो भी भैया है दूध वाले वो हमें दूध लेके जाते, तो पहले मम्मी बोलती है उसको उबालने के लिए रखो, मीन्स पुट ऑन हीटिंग। व्हाई? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट सर्वाइव बियॉन्ड सर्टन टेम्परेचर, सो हीटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑफनली फॉलोड वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेजिटेबल्स, जो करीज, जो भी हम सब्जी बनाते हैं घर में, उसको हम जब खाने के लिए लेते हैं तो उसको हम गर्म करके लेते हैं। व्हाई? इन केस बाय मिस्टेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर कर गए हो तो बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ बॉइलिंग, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डाई एंड वी विल बी सेफ। देन हीटिंग का एक और भी पर्पस है। हीटिंग की वजह से भी मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। क्लियर? हीटिंग की वजह से भी मॉइस्चर कंटेंट और उसकी वार्मथ जो होती है वो कम होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते। देन कूलिंग। सी, कूलिंग एंड फ्रीजिंग बोथ आर डिफरेंट। कूलिंग इज नॉर्मली, मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर को अगर आप खोल के देखते हो तो ऊपर एक फ्रीजिंग का चेंबर होता है, फ्रीजर चेंबर होता है, दैट इज फ्रीजिंग, एंड बिलो दैट whichever shelves are there, no, that are cooling. Whichever fruits, vegetables we are bringing from the market, to keep it fresh, वो स्पॉइल ना हो, सड़ न जाए या फिर सूख न जाए, इसके लिए हम उनको कूल टेम्परेचर में रखते हैं, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से अटैक नहीं करते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट वेजिटेबल्स, हाउ लॉन्ग वी आर स्टोरिंग, not far more than the 7 or 8 days we are keeping them. So for that particular time period we can use cooling method to preserve the food items which need to freshly consume. Then deep freezing. If you have seen that when fishing is done and that fishes are to be exported from one place to another place, it may be state export, it may be country export, they used to freeze it, मतलब बहुत बड़े बड़े आइस के क्यूब्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं, उसमें वो रखते हैं ताकि वो फ्रीज रहे, फ्रीज। एंड बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग व्हाट हैपेंस, the microorganism not at all able to attack on that temperature, on the food stuff which we are preserving it. So deep freezing is also one of the best method. Mostly जो flesh होता है, मीट होता है, वो deep freezer में ही रखा जाता है, because to avoid them to get raw, spoiled. Then common salt, ये बहुत ही इजी और घर घर में यूज की जाने वाली मेथड है। अप्लाइंग ऑफ कॉमन सॉल्ट टू प्रिजर्व द फूड। सॉल्ट, वी जनरली यूज द सॉल्ट एवरीवेयर, मतलब जब हम कोई भी डिश बनाते हैं घर में, स्वीट डिश के अलावा, डेजर्ट्स के अलावा, हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। उसका फर्स्ट पर्पस होता है टेस्ट, सेकेंड होता है सप्लाई ऑफ आयोडीन न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी, एंड थर्ड इज प्रिजर्वेशन। व्हेन वी आर प्रिजर्विंग food for longer period of time, that time we are sprinkling the common salt on it. Because of the common salt, microorganisms cannot survive in that salty condition. Clear? So food stuff which we are trying to preserve is getting ultimately preserved. Then sugar. When we are making jams, jelly, स्क्वैशेस, पल्प्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आंवला का स्क्वैश होता है या कैंडी होती है, हम उसमें क्रश्ड शुगर यूज करते हैं। इसके अलावा अलग अलग पिकल में भी हम पिकल में सॉल्ट, शुगर और ऑयल, ये चीजें ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती है, बिकॉज दीज थ्री आर सॉल्ट,
शुगर एंड ऑयल और विनेगर। ऑयल में देखो मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, सनफ्लावर और ग्राउंडनट ऑयल भी होता है। इट्स अप टू योर चॉइस, बट ऑयल ऑल टुगेदर आई हैव रिटन देयर। These three things are there which help to maintain the proper hygienic condition of that preserved food so that microorganism does not attack on that and does not spoil the food ultimately. So sugars, oil and vinegar we have talked about. Then chemicals. Chemical substances like sodium bisulfite, sodium benzoate, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो ईटेबल में ऐड किए जाते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। देखो बहुत से ऐसी चीजें हैं आजकल हम मार्केट से रेडीमेड लेके आते हैं। वी यूज टू ब्रिंग पिकल, वी यूज टू ब्रिंग बिस्किट्स, वी यूज टू ब्रिंग मेनी थिंग। देखो आप एक मॉल में जाओ, खाने की ही चीजें ज्यादा मिलती है हमें और वो प्रिजर्व होती है। चाहे आप कुकीज ले लो, बिस्किट्स ले लो, पेस्ट्रीज ले लो या कोई भी फूड आइटम ले लो, कोई भी फूड आइटम ले लो, उनको एज इट इज कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए हमें? फूड प्रिजर्वेटिव। और ये जो दो नाम बताया मैंने आपको, सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच वी कैन यूज इन द ईटेबल्स। मतलब जो खाने की चीजें हैं उनमें हम एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दैट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू आवर बॉडी। क्लियर? क्लियर? दैट्स व्हाई ऐसे नहीं कि केमिकल है तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस डालो फूड प्रिजर्व हो जाएगा। No, it's not like that. Along with the preservation of the food, provided it should not cause any harm to the person who is consuming that food. Clear? The next one is pasteurization. It's very interesting process. This process was invented by the scientist Louis Pasteur और उनके नाम से इस प्रोसेस को pasteurization नाम दिया गया है। What is pasteurization process? It is generally carried out in case of milk. Milk. अभी मिल्क को जब फ्रेश मिल्क आता है डेयरी से, मिल्क फैक्ट्री में, तो इसको सडनली हीट किया जाता है। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 15 मिनट तक हीट किया जाता है और एक्सट्रीम हीट करने के बाद उसको वेरी क्विकली फ्रीजिंग टेम्परेचर में लाया जाता है। मतलब सडन कूलिंग, ऐसे नहीं कि 70 डिग्री तक हीट किया तो धीरे 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 वो ठंडा हो जाएगा, नहीं। वेरी सडनली, वेरी क्विकली द टेम्परेचर ऑफ दैट मिल्क हैज ब्रॉट डाउन। मतलब देखो एकदम हाई हीट पे उसको हीट करना, राइट? उसके बाद उसको सडनली उसका टेम्परेचर नीचे लाना, कोल्ड करना उसको। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। अभी इससे क्या होता है? दो चीजें होती है। First, when we are heating that, microorganisms are dying. When we are allowing it to cool down very quickly, तो ये जो बीच का टाइम स्पैन है ना, हीट और कूलिंग के बीच का, ये स्पैन हम उसको देते ही नहीं। तो इस ड्यूरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है वो कंप्लीटली ना के बराबर हो जाता है। एंड दैट मिल्क इज देन पैक्ड एंड सोल्ड। इवन जो हम दूध लाते हैं ना पैकेट्स में या फिर बॉटल्स में, जो दूध मिलता है हमें मार्केट से या डेयरी से, वो जो होता है वो कम्प्लीटली पास्चराइज्ड मिल्क होता है। सो वी कैन डायरेक्टली ड्रिंक दैट मिल्क, दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसइंफेक्टिफाइड या फिर हम उसको बोल सकते कि उसको पूरा क्लीन किया हुआ है। इट इज ड्रिंकेबल, कंज्यूम कर सकते हैं हम उसे। सो दिस इज नोन एज द पास्चराइजेशन प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज एयर टाइट पैकेट्स। हमारे जितने भी स्नैक्स के पैकेट्स आते हैं जो हम लेते हैं मार्केट से, चिप्स के वगैरह वगैरह, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। सो इफ यू हैव नोटिस दैट इफ यू ओपन इट देन मच मोर ऑफ एयर इज कमिंग आउट। या फिर आप उसको अगर प्रिक करते हो तो ऐसा उसको प्रेस करो, देखो किसी हवा बाहर आती है तो आपको अरे ये तो इतना बड़ा था, इसमें तो सारी हवा ही भरी हुई है, चिप्स तो इतनी सी है। एक्चुअली दीज चिप्स वेर पैक्ड into the airtight packets. क्यों? ताकि when it is packed in the airtight packets, the attack on the microorganism on such a airtight packed food is very very negligible. Means that food is safe to consume. After all these remedies, I will tell you that as far as possible, जितना पॉसिबल है उतना आप
फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर का ही खाना खाना प्रेफर करो, बिकॉज नाउ अ डेज वी कैनॉट काउंट, यस वी कैनॉट काउंट कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू में है और वो कब हमारे सिस्टम पे अटैक करे थ्रू एनीथिंग। यू कैन टेक द वायरल एग्जाम्पल्स, जो भी डिसीज है वायरल डिसीज उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। यू मे हैव हर्ड अबाउट द कोरोना, यू मे हैव हर्ड अबाउट द फ्लू, यू मे हैव हर्ड अबाउट द मेनी डिसीजेस, स्किन इन्फेक्शंस एंड ऑल। सो अवॉइड freshly prepared, homemade at home. Clear, students? Okay. So up to this point we have discussed about the food poisoning and how to get rid of food poisoning by different method of preservation of food. In next session we will talk about the nitrogen cycle. Till that time you read these points, you write all the points in your textbook and send me the photographs. Thank you.